कोरोना के मामले एक बार से फिर से बढ़ रहे हैं. These cases are rising 1,15,000 plus. It's a matter of great concern. The government is continuously requesting people to follow COVID appropriate behavior. But what really is the plan? It's very obvious कि ये second surge है. To talk about this, we have the man himself, Dr. Harshvardhan, the Health Minister. Thank you very much, Dr. Harshvardhan. मेरा पहला सवाल है 1.15 लाख से ज्यादा मामले, इतने मामले पहली वेव में भी नहीं हुए थे. मैं अगर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछूं, how much worried should we be, or how much worried is the government? Right now, you see, our worry is basically focused on the fact that how to really convince the people once again that COVID appropriate behavior is so important. You see, it's all happening because of the lack of commitment and sincerity on the part of the people, where they are taking everything so casually and in so light manner that nobody is really interested in wearing the mask. If at all they are wearing the mask, they are not wearing it properly, and there is no respect for the norms of physical distancing. There is no respect for maintaining hand hygiene and things like that, and all normal activities have resumed. They should have resumed, but they were supposed to resume with discipline, of the COVID times. But everybody has returned back to the normal times. Correct. And nobody is actually respecting the COVID appropriate behavior. ये तो अब this is unfortunately the reality. अब सवाल ये भी होता है, जैसे आज आपने देखा in the courts, it has been said that even if you are alone in a car, you're supposed to wear a mask, right? That clarity has been given. And then you juxtapose this image with thousands, tens and thousands of people in political rallies, in religious functions, and then you think to yourself that where is the rule? This is in fact an outcome of a combination of many factors and many other activities that have happened. Not only about elections, it's so many things. Social activities happening, political activities happening, personal activities happening, functions happening, and people not respecting the norms and all that. आपको लगता है इन सब पे कर्ब्स लगाने जरूरी होंगे अगर ये if we have to stop this peak? बहुत जरूरी है, कर्ब लगाना जरूरी है. Even political functions. जो इलेक्शंस हैं वो हम सब जान रहे हैं कि इलेक्शंस तो समय पे होने जरूरी हैं. अब ये तो कॉल इलेक्शन कमीशन को लेने का विषय है. इस पे मेरे को कोई कमेंट भी करना उचित नहीं है. मैं इसलिए पूछ रहा हूं डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि जब मामले बढ़ेंगे तो बेड्स की जरूरत पड़ेगी, अस्पताल पर जोर पड़ेगा. वो बिल्कुल ठीक है. जो लोग इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रैलीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, धरने में, आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको मेरा अपील है कि भाई आपको जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टाइम एंड प्लेस करनी है, करिए आप. क्योंकि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो. लेकिन एक मॉडेस्ट सी अपील है कि क्या आप अपने आप को ठीक से अपने नाक मुंह को नहीं कवर करके रख सकते? हु स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दैट? उसको साथ साथ करते हुए अगर आप अपनी वो एक्टिविटीज भी करते हैं तो शायद खतरा नहीं है. लेकिन अगर आप वो एक्टिविटीज भी कर रहे हैं और प्रिकॉशंस भी, बेसिक प्रिकॉशंस, देखिए कोविड की एक अच्छी ब्यूटी थी इस वायरस की कि इसने कोई बहुत हाई फाई ट्रीटमेंट हमें एडवोकेट नहीं किया. एकदम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसने ईमानदारी से अपनाया, वो इस पूरे साल भर के अंदर मोटे तौर पर वो बीमार नहीं हुआ. ये सच्चाई है. वी हैव टू एनालाइज दिस एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस फैक्ट. आपने देखा अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं इन हॉस्पिटल्स वेयर इन महाराष्ट्र द नंबर ऑफ बेड्स आर रनिंग लो डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव एडेड मोर बेड्स. इन दिल्ली देयर इज अ सिमिलर सिचुएशन. आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर प्लेसेस आल्सो. डू यू थिंक दैट नाउ इट्स टाइम फॉर सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स टू बी एबल टू मीट द चैलेंज? देखिए, फरवरी में 8-9 हजार केसेस रह गए थे. अभी फिर 1 लाख के ऊपर आ गया 2 महीने के अंदर. तो बहुत सारी जगह पे जो आईसीयू के बेड्स हैं या दूसरे जो बेड्स कोविड के लिए डेडिकेट किए गए थे, वो नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए चेंज कर दिए गए थे. तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज इफ वी नीड मोर बेड्स, वी हैव टू रीअरेंज द होल थिंग.
realign ourselves to the changing situation. आपने खबरों में भी देखा होगा that Maharashtra is now saying that we seem to be running out of vaccines. In fact, I have this information from BMC sources. They say that Kohinoor Hospital में doses खत्म हो गई कल 7:30 बजे 1.85 lakh vaccine doses remained in stock across centers in the BMC. Similar reports from Rajasthan about 15-20 days ago. इसको समझ लीजिए इस विषय को, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। कल सारे ये हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं 11 स्टेट्स के, इनके सामने भी मैंने बोला है कि पहली बात तो किसी भी स्टेट में कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, नंबर 1। We are saying this on record. Yes, I am saying this on record. देखिए क्या हो रहा है कि स्टेट्स जैसे अभी उनके पास 4 दिन के लिए वैक्सीन अगर बची है तो वो कहते हैं 4 दिन के लिए वैक्सीन रह गई, खत्म हो रही है। उनको यहां से भी पता है और हम लोग भी लगातार बता रहे हैं। कल भी कई स्टेट्स ने जब उसमें ये इशू को रेज किया तो मैंने सामने उनकी स्टेट का चार्ट निकाल के उनको बताया कि अभी 8 अप्रैल और 12 अप्रैल के बीच में आपकी इतनी लाख वैक्सीन पाइपलाइन में, यानी देखिए जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है वैसे वैसे वो भारत सरकार के पास आ रही है और भारत सरकार उनको स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पहुंचा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे हॉस्पिटल्स को देना है। अब उन्होंने ये देखना है कि किस हॉस्पिटल की कितनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से उन्होंने देना है। हम जैसे जैसे वो यूज करते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके वैक्सीन के स्टॉक्स को रिप्लेनिश करते जा रहे हैं और उसमें उनको अपनी एबिलिटी दिखानी है। हमने तो उनको खुल के कहा है कि आप अपनी एबिलिटी इतनी आज दिखा रहे हो, कल आप इतनी दिखाओ, हम आपको इतनी वैक्सीन और दे देंगे। In an interview to NDTV, the manufacturers of Covishield, Adar Poonawalla, he says that I only have a capacity as of this moment of 2 million doses. अब हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीन्स लग रही हैं अब, they are 30 lakhs, about 3.4, 3.5, 4 million doses also per day. आपको नहीं लगता एक सिचुएशन आ जाएगी दैट द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर वर्सेस द रिक्वायरमेंट? देखिए हम एक तरफ ये बैलेंस भी बना के रख रहे हैं और दूसरी तरफ हम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे सिस्टम के सीनियर लोग, जिम्मेदार लोग, इन सिस्टम्स में जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पर भी जाकर बैठे हुए हैं और हम अपने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, दूसरे सिस्टम्स के साथ इनको भी और फर्दर मैन्युफैक्चरिंग अपनी इनकी कैपेसिटी, एबिलिटी, इसको और फर्दर स्केल अप करने के लिए। Today there was a big protest also in Delhi that vaccine Maitreyi should have been avoided at a time like this. ये डोज आप हिंदुस्तानियों को पहले दे देते, उसके बाद Maitreyi दिखा देते। देखिए ऐसा है कि ये जो क्रिटिसिज्म है इसका कोई बेसिस नहीं है। यू हैव टू अप्रिशिएट कि इवन अदरवाइज ऑल्सो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के 60% बच्चों के लिए इंडिया वैक्सीन सप्लाई कर रहा था और हमारी जो है एक देखिए जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी एक होता है, एक साइंस का एंगल भी होता है। जो साइंस होती है, साइंस का जो आउटकम होता है वो पूरी की पूरी मानवता के कल्याण के लिए होता है। हमने जो भी वैक्सीन मैत्री की है इट इज नेवर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट आवर पीपल नीड। देश में जब हमने पहले कहा कि सारे हेल्थ वर्कर आ जाओ, हमने तो नहीं कहा कि हेल्थ वर्कर थोड़े थोड़े करके आओ या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को बुलाया या फिर 60 साल से ऊपर वालों को बुलाया या फिर 45 से 59 वाले कोमॉर्बिड्स को बुलाया। But now sir, with time running out, there is also a demand from various states to open up this vaccination for all. And yesterday we saw a statement that those who need it should get it and not those who want it. The priority groups have been decided based on the backing of science, based on backing of recommendations of international groups, WHO. एंड वॉट एवर इज बीइंग डन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी चीज़ों के बीच में से बैलेंस बना के और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी या हमारी जो कैपेसिटी है वो सारी चीज़ों के बीच में से बैलेंस बना के ये किया जा रहा है। ये WHO भी कहता है कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं they have to be given the vaccine first. It is not to be given to everybody across you see all sections. तो ये कोई आर्बिट्रेरी फैसला नहीं है कि अभी इसको लगाएंगे उसके बाद उसको लगाएंगे। ये सब कुछ बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से, वेल प्लान्ड ढंग से इसको किया जा रहा है और जब इसके आगे अगला स्टेप लेने का समय आएगा या जरूरत होगी तो वो भी लिया जाएगा। But Dr. Harshvardhan, even if we go by present estimates, it seems that we are already behind schedule
as far as vaccinating people are देखिए- concerned to meet our targets. देखिए सितंबर इसमें- में जाके टारगेट खत्म होगा, संकेत जी, जून तक हो इसमें जाना। कोई टारगेट नहीं है और कोई ये डायनामिक प्रोसेस है एकदम जो है। और ये जैसे वायरस का बिहेवियर डायनामिक है, ये प्रोसेस भी थोड़ा पूरी तरीके से डायनामिक है।